Hello and welcome to our Zini tutorial. Today we will be starting with a new chapter that is Lucy Gray by William Wordsworth. This is another video in the series for AEC paper, and we will be dealing with a poem today which is Lucy Gray, and it is composed by William Wordsworth. A little bit introduction about William Wordsworth. He is one of the most prominent figures of romantic movement. So he belonged to which era? He belonged to romantic period. Okay. What are the key contributions that he has made so far? He emphasized mostly on the importance of nature and emotion in poetry. So romantic movement में most of the poets, उनका emphasis, their focus was on the nature and emotion, individual emotion. इन्होंने भी सेम चीज किया है इस पोएम में भी. He is known for his lyrical ballads and profound reflections on human conditions. लिरिकल बैलेट का मतलब क्या होता है? बैलेट होता है एक ऐसा पोएम जहां पे आप कोई कहानी नरेट करते हो. ओके, लिरिकल अगर वो राइम करे, कोई पर्टिकुलर राइम स्कीम हो उसका, तो उसको हम लोग लिरिकल बोलेंगे. तो इनके पोएम में एक रिकरिंग कैरेक्टर रहती है, वो है लूसी ग्रे. लूसी नाम की कैरेक्टर उनके पोएम में बहुत देखने को मिलता है, और अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग रीजन उसका अलग अलग रिप्रेजेंटेशन और इंटरप्रिटेशन होता है. फॉर एग्जाम्पल, लूसी पोएम्स जो है, कभी ये लूसी इट सर्व एज अ सिंबल ऑफ नेचर, कभी इट सर्व एज अ सिंबल ऑफ लव एंड इनोसेंस, kabhi it served as a symbol of death as well. In this poem, we will see how Lucy Gray represents a lonely child who gets reunited with nature. Moving forward, overview of Lucy Gray. So it was first published in 1799, and it was published as part of William Wordsworth collection known as Lyrical Ballad. Style, it is a lyrical ballad. What is a ballad? I told you. What is the summary of this kahani, of this story, of this incident that has been narrated in this ballad? So the poem narrates the story of a young girl, जिसका नाम Lucy Gray है, who is sent out by her father to fetch her mother. They live in a countryside, village में रहते हैं, एक moor में रहते हैं, और शाम का वक्त होने वाला रहता है. देयर मदर हैज नॉट रिटर्न फ्रॉम द मार्केट, तो वो भेजता है अपने बेटी को, जाओ जाके वो ब्रिंग योर मदर. लेकिन लूसी ग्रे जब जाती है तो वो स्नो स्टॉर्म में फंस जाती है और वो अपने रास्ता भुला जाती है. शी फॉरगेट्स हर वे. ओके, एंड देन it is believed that she dies in the snowstorm and her spirit is believed to haunt the moors. Okay, this is the summary of the incident of the story that has been narrated. Now, theme of nature. इसका what are the major themes? सबसे पहला nature का, because all the romantic poems उनका one of the recurring theme होता था nature. Okay, तो यहाँ पे होता है nature is central to the poem, which is depicted as both beautiful and indifferent. Nature is something which is a giver of life as well as taker of life. It is both a nurturing force जो life देता है, and also a harbinger of death, tragedy. Harbinger of tragedy मतलब it brings with it tragedy. How? For example, it is nature when it rains down, जब बारिश होती है तो रेन ड्रॉप्स जब गिरता है उससे क्रॉप्स ग्रो होता है, फ्रूट्स ग्रो होता है. तो लाइफ इज बीइंग क्रिएटेड फ्रॉम अ स्मॉल सीड, प्लांट्स आर ग्रोन. बट इट इज द सेम नेचर, जब तूफान आता है तो वही प्लांट्स को अपरूट किया जाता है. आंधी तूफान में वही trees get uprooted. So it is bringing life as well as death. In this poem also we get to see how Lucy becomes a victim of a snowstorm, which is brought by nature. So another theme is theme of solitude. Okay. Uh, so Lucy Gray यहाँ पे she is portrayed as a solitary figure. Solitude मतलब loneliness. She is alone.
लाइफ में भी शी इज अलोन, और इवन इन हर डेथ शी इज अलोन. व्हेन शी इज गोइंग टू फेच हर मदर, अकेले जाती है और उसी में उसका डेथ हो जाता है. So her isolation is emphasized by her journey alone into the wilderness. Symbolism: solitude represents करता है purity and innocence लूसी का. It also represents as the inevitable separation between humans and nature. Structure: what is the structure? इस poem में 16 quatrains है. Okay, quatrains का मतलब होता है 16 पैराग्राफ, जिसमें क्वार्टरेंस 4 लाइंस का पैराग्राफ, और इसका राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी. हर एक लाइन, हर एक पैराग्राफ जो है ए बी फॉलो करता है. आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है. वी हैव सीन व्हाट इज आयम्बिक पेंटामीटर. पेंटामीटर जब एक वर्ड्स में, एक लाइन में 5 मीटर हो. टेट्रामीटर 4 मीटर हो. ओके. एंड रिपीटेशन एंड इमेजरी का इस्तेमाल किया गया इस कहानी में. इस पोएम में इमेजरी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है. इमेजरी मतलब ऐसा स्टाइल में लिखा गया है कि इमेज आपके माइंड में क्रिएट होता है जब आप इसको रीड करते हो. तो लूसी ग्रे, हु इज लूसी ग्रे? अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट हर. शी इज अ यंग इनोसेंट गर्ल हु इज डीपली कनेक्टेड विद नेचर. शी इज डिस्क्राइब्ड एज अ सॉलिटरी चाइल्ड, जो हाईलाइट करता है उसका यूनिकनेस. Okay, she represents, what does she represent? उसका symbolize क्या करती है? She represents purity of nature and childhood innocence. Her disappearance, वो symbolize करता है transient और nature of life and beauty. Life और beauty ये बहुत ही transient होता है, बहुत जल्दी चला जाता है, गुजर जाता है, किसी और में mix हो जाता है. तो Lucy was alone. She used to live. Now she became one with the nature. Because उसका बॉडी कभी मिलती नहीं है, तो इट इज अज्यूम दैट शी बिकेम पार्ट ऑफ द नेचर. क्लाइमेक्स क्या होता है? लूसी वेंचर्स आउट इनटू द स्नो स्टॉर्म, और उसको दोबारा कभी दिखती नहीं है. ये एक ट्रैजिक एंड होता है जो मिस्टीरियस भी है और पॉइंटेंट भी है. मिस्टीरियस इसलिए क्योंकि वी डोंट गेट टू नो कि उसके साथ हुआ क्या. हम लोग अज्यूम करते शी मस्ट हैव डाइड इन द स्नो स्टॉर्म. उसका जो फेट है वो बहुत ही एम्बिगुअस है, अनक्लियर है. ओके, अनसर्टेन. शायद वो पेरिश हो गई, नेचर के साथ मिल गई, शायद वो अभी भी भटक रही है मूड्स में. तो ये एक सेंस ऑफ लॉस और एक मिस्टिकल कनेक्शन दोनों ही एम्फेसाइज करता है इस पोएम में. अलग अलग इमेजरी, लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया. सबसे ज्यादा इमेजरी का किया गया है फिर पर्सोनिफिकेशन. व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? व्हेन आप लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स देते हो किसी नॉन लिविंग थिंग को. ओके, उसको हम लोग कहते हैं पर्सोनिफिकेशन. अलग अलग इंटरप्रिटेशन है. ओके, दिस पोएम कैन बी रेड एज अ सिंपल ट्रेजेडी. मान लो कि नॉर्मल ट्रेजेडी या फिर कमेंट्री है कि हम लोगों का एक डीप कनेक्शन होता है नेचर के साथ. कुछ लोग ये इंटरप्रेट करते हैं कि लूसी जो है मर के भूत बन के इसलिए वो हॉन्ट करते हैं. वर्ड्सवर्थ का जो मैसेज है वो ये है कि वर्ड्सवर्थ बिलीव करते हैं स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअलिटी में, और वो बिलीव करते हैं कि नेचर और ह्यूमन लाइफ क्या है, वो मिक्स होके इटर्नल हो जाता है. इटर्नल मतलब हमेशा हमेशा के लिए, फॉर एवर. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट: इट वाज रिटन ड्यूरिंग 18th सेंचुरी. उस टाइम जब रोमांटिसिज्म उरूज में था. वो रोमांटिसिज्म होता है जब आप नेचर के करीब जाते हो, जब आप आइडियलाइज वर्जन को उसके बारे में पोइम लिखते हो, जब आप डे टू डे लाइफ में अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करते हो. दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिसिज्म. इतना ही आपको जानना है फॉर योर एईसी पेपर. कल्चरल बिलीव्स, ये भी एक इसका बैकग्राउंड है. उस वक्त लोग घोस्ट एंड सुपरनैचुरल बीइंग में बिलीव करते थे. इट वाज अ कॉमन बिलीव इन रूरल इंग्लैंड. ओके. लास्टली, this poem emphasizes the importance of nature, pastoral life मतलब agricultural life and the human spirit. ये सब एक जैसा है. जो रोमांटिक इरा में यही सब के बारे में देखने को मिलता है. What is the impact? लूसी ग्रे आज तक एक क्लासिकल एग्जाम्पल माना जाता है रोमांटिक पोइट्री का. ओके, और यहाँ पे वर्ड्सवर्थ का जो वर्क है आज भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज अ कनेक्शन बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन इमोशन. लेट अस सी सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एमसीक्यू. विच ईयर वाज लूसी ग्रे पब्लिश? आंसर है 1799.
Okay, 1799 is the answer. Next, where was the poem published? It was published, चार ऑप्शन थे, it was published in lyrical ballad, option A. दोनों का आंसर है आपका option A. Let us see the next question. Which is the period to which the poem belongs? Of course, the poem belongs to romantic poetry. इसका भी आंसर A है. What is the genre of the poem? ये एक ballad है. Okay, sonnet होता है 14 lines का. शेक्सपियरियन सोनेट तो है नहीं, विलियम वर्ड्सवर्थ में लिखा है. पेट्रार्कन ऑफ पोएट भी नहीं है, ये सोनेट नहीं है. एलिजी होता है सैड, किसी के लिए, किसी के मरने पे या किसी सैड इंसिडेंट पे आप जो पोएम लिखते हैं उसको कहते हैं एलिजी. बट दिस इज अ बैलेड जहाँ पे एक कहानी आपको नरेट किया गया है. तो आंसर है ए. व्हाट इज द प्राइमरी सेटिंग ऑफ द पोएम लूसी ग्रे? इसका आंसर है सी, अ स्नो कवर्ड मूर. स्नो कवर रहता है पूरा. Why does Lucy Gray venture out into the storm? इसका आंसर होगा सी, to bring her mother back home. Next question. Which of the following best describes Lucy Gray's character in the poem? She was not outgoing at all. She was lonely and isolated. Answer B होगा. How does the poem describe Lucy Gray's connection to nature? Was she afraid of the natural world? नहीं, she was not at all afraid. वो indifferent मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ना. अच्छा ना, अच्छा लगता ना बुरा लगता, indifferent. That is also not the answer. The answer is C. She is deeply connected to and she is at peace with nature. What happens to Lucy Gray at the end of the poem? क्या होता है? क्या वो घर लौट के आती है? बिल्कुल नहीं. सर्च पार्टी जो लोग ढूंढने जाते हैं उसको तूफान के बाद, क्या उनको वो मिलती है? बिल्कुल नहीं. क्या वो शहर भाग जाती है? वैसा भी नहीं. The answer is C. She vanishes in the snowstorm and she is never seen again. क्या लिटरेरी डिवाइस प्रोमिनेंटली यूज किया गया है? इमेजरी. एलिटरेशन होता है जब सिमिलर साउंड को आप रिपीट करते हो बार बार. जैसे द पाइट पाइपर पेड हिज प्राइस, तो फास्ट साउंड रिपीट हुआ, एलिटरेशन. हाइपरबोल होता है जब आप किसी चीज को बहुत एग्जैजरेट करके बोलते हो, कि मैंने आपको 1000 दफा समझा दिया इस बात को फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो ये 1000 दफा क्या हो गया? एग्जैजरेशन. मे बी मैंने आपको 5-6 बार बताया होगा, तो इसको हाइपरबोल कहते हैं. आंसर है इमेजरी. हाउ डू द विलेजर्स परसीव लूसी ग्रे आफ्टर हर डिसअपियरेंस? तो विलेजर को क्या लगा? वो भाग गई, वो हॉन्ट कर रही है, वो ट्रैवलर्स ने उसको बचा लिया, कि वो उनके बारे में भूल गए. विलेजर्स को लगता है कि शी हैज बिकम अ पार्ट ऑफ द मूड. इसमें 4 ऑप्शन में ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बट अगर इसमें एक ऑप्शन होता है दैट शी हैज बिकम एट पीस विथ नेचर, तो हम लोग हॉन्टेड वर्ड यूज नहीं करते, तो हम लोग एट पीस विथ नेचर ऑप्शन देते. तो ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है आपका आंसर क्या होगा. व्हाट थीम इज मोस्ट स्ट्रांगली रिप्रेजेंटेड इन लूसी ग्रे? द मिस्ट्री एंड ट्रेजेडी ऑफ नेचर. आंसर सी होगा. What is the rhyme scheme? Rhyme scheme है AB AB. And last, how does the poem Lucy Gray reflect romantic ideals of the time? By emphasizing industrial progress? बिल्कुल भी नहीं. By glorifying the life of royalty? ये भी romantic ideals नहीं है, वो day to day life के बारे में focus होता है. By highlighting the supernatural and sublime in nature? Yes, this is the answer. Answer C इसका होगा. That is all from this. We will see you in the next class with the next poem or prose. Thank you.